And viewers, the political landscape in Uttar Pradesh is once again abuzz, and in the thick of it is Samajwadi Party chief Akhilesh Yadav. Amid speculation of a possible rift in the BJP, Akhilesh Yadav once again took a jibe at the BJP as he puts a cryptic post on his X account. And it says, and I quote, "Saw lao aur sarkar banao." Now, what can be deemed as an open call for horse trading? It seems that the Kannauj MP is eating his own words. Akhilesh Yadav often in the past has accused the BJP of horse trading. Now, the BJP has taken this opportunity to train its guns at the Samajwadi Party chief. Taking a sharp jibe, the Saffron Party says that Samajwadi Party is working on such offers since a long time. But the BJP juggernaut stands strong against such offers. मैं उनसे कहना चाहूंगा, 100 लाओ नहीं, पहले अपना मूलधन बचाओ। जिस वोट बैंक के चक्कर में 2 लड़के साथ आए थे, अब एक लड़का बड़का हो गया है, वो लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हो गया है। अपना वोट बैंक बचाओ, बाद में आकर यहां ज्ञान बखारो। बताना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के मुखिया को कि भारतीय जनता पार्टी का अभी हैट्रिक ऑफर चल रहा है और यह हैट्रिक ऑफर हमारा उत्तर प्रदेश में 27 में कंप्लीट होगा। जब 27 में हम तीसरी बार सत्ता में आ जाएंगे, तो इसलिए उनके लिए जो ऑफर है वो मानसून नहीं है, वो मौन और शून्य ऑफर है उनके लिए। वो उनको 27 में जनता बता देगी। समाजवादी पार्टी पहले से ही इस तरह के ऑफरों के आधार पर चलती है, लेकिन कोई ऑफर के आधार पर सरकार नहीं बनती है। इस मुगालते से उसको बाहर आना चाहिए। वो पहले भी यूपीए के साथ कई बार ऑफर का लेन देन करके सरकार को समर्थन देते थे, समर्थन वापस लिया करते थे। आज वो भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में भी ऐसा विचार कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किन्हीं ऑफरों पर चलने वाली पार्टी नहीं है। सरकार जनमत से बनती है, जनता के साथ जुड़ाव से बनती है, जन संवेदनाओं के साथ बनती है। अखिलेश यादव जी को ये बात समझनी होगी। The DMK, on the other hand, has put the onus on the BJP, saying that they have done it themselves in the past in Maharashtra, Karnataka and Madhya Pradesh. Listen in. See, whatever is happening in the Uttar Pradesh BJP government is for the BJP spokesperson there to comment. And pertaining to Akhilesh Yadav's comment, I think Samajwadi can explain better. But having said that, there is karma, right? What you do, that comes around. What has BJP been doing for the last 10 years? Toppling state governments. In Madhya Pradesh, we saw it in Maharashtra, we saw it in Karnataka. We have been seeing it everywhere. Wherever there's a possibility, BJP has been using money power, ED, CBI, income tax, and toppling governments. Right? So now the same thing is happening to them, or the prospect of the same thing happening to them is karma. What you sow comes around. Right? So it's BJP, I think, seeing their own medicine. All right, let's take this across to our guest. Joining us with us is Dr. Kaushal Kant Mishra, who's the national spokesperson of the BJP. With us also is Anil Dubey, national spokesperson of the RLD. With us at the same time is Kapish Srivastava, who is a spokesperson of the Samajwadi Party. And also with us is Kamru Zaman Chaudhary, political analyst. Dr. Kaushal Kant Mishra, I don't know if you heard what the DMK spokesperson said, but they're saying that this is the BJP getting a taste of its own medicine. How would you respond to such comments coming in from opposition? Madhav, you just find out on the 2nd December 22, Akhilesh had already offered this type of offer to our Deputy CM that bring 100 from BJP and you make a government. So it is his old offer and it is just like Mungeri Lal ke Haseen Sapne. यहाँ पे मैं कहूँगा it is just Akhilesh Yadav के हसीन सपने. Nothing more than that. They can say anything, but BJP is totally strong, united, and whole organization is working and planning for next upcoming election. It is a nearby recent election for the 10 seats and for the future 27 seat 2027 election. So in my opinion, whatever Akhilesh Yadav is posted on the X, it is just his dream and which will never come to final stage. ऑल राइट, कपिश श्रीवास्तव, ये सपना है अखिलेश यादव का, ये सपना अधूरा ही रह जाएगा कहती है बीजेपी। लेकिन जो पार्टी बीजेपी को हॉर्स ट्रेडिंग को लेकर कई बार आरोप लगा चुकी और कई विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं, तो इस तरह का फिर कमेंट करने का क्या औचित्य है? कपिश जी देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कह दें कि हमारे डॉक्टर साहब ने एक बात कही कि ये हसीन सपने, तो इसमें एक ये कहना है कि अब काफी समय गंगा जी में पानी बह चुका है। हाँ, हटा दीजिए, अब ये सिर्फ सीन सपने जो क्रियान्वित होते हुए दिख गए। मैं आपको एक बात कहता हूं,
हमने तो ऑफर इतना ही किया है ना कि 100 लाओ, सरकार बनाओ। हम अपनी सरकार कहां बना लेंगे? ट्रेडिंग कहां है? तो किसके, और तो दूसरी चीज किसकी ओर इशारा है सर, वो ये भी बता दीजिए। पीडीए की ओर इशारा है साहब। इनके यहाँ पीडीए का उत्पीड़न हो रहा है। केशव प्रसाद मौर्य जी स्वयं अपने कार्यकर्ताओं से कहते हैं कि जो आपकी स्थिति वही हमारी भी स्थिति है। हमको स्टूल पे बैठाया जाता है, हमारी तख्ती उजाड़ दी जाती है, हमारे घर जो है छुआछूत बनाया जाता है और 4.5 वर्ष के बाद हड़काने पड़काने पे आया जाता है। ये सामने है। आप अनुप्रिया पटेल जी को देख लीजिए, उन्होंने कहा कि पिछड़ों के आरक्षण पर डकैती डाली गई है, कहा गया कि नहीं। संजय निषाद ने क्या कहा, ओपी राजभर साहब ने क्या कहा। तो सारी चीजें तो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं। और आप बताइए, इन्होंने गुड्डू खटीक पे जिस तरीके से कार्रवाई की, कौशल किशोर के ऊपर जिस तरीके से इन्होंने कार्रवाई की, आप बताइए ये पीडीए का उत्पीड़न कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? हमारा तो विजन ही पीडीए है, हम उनको सशक्त करना चाहते हैं। ओके, कौशल कांत मिश्रा, आई वांट कौशल कांत मिश्रा टू रिस्पॉन्ड टू ऑन दैट। ये पीडीए का उत्पीड़न चल रहा है और आपके एलाइज के जो बयान है उस बेसिस पे ये बयान दिया गया है अखिलेश यादव जी का, क्या जवाब देंगे? हाउ विल यू रिस्पॉन्ड मिस्टर मिश्रा? माधव, मुझे लगता है कि कल आफ्टरनून का एक केशव प्रसाद मौर्य जी का एक ट्वीट है जिसमें उन्होंने कल लिखा है कि पार्टी मजबूत है, संगठन भी मजबूत है, पीडीए एक धोखा है जिसके चक्कर में किसी को नहीं आना है। तो ये ऑलरेडी वो लिख चुके हैं। और समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और अखिलेश यादव ये इसी सपने में थे, सपने में रहेंगे, और ये सपना 2047 तक पूरा होने वाला नहीं है। इट इज क्लियर, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। They can be in dream, no problem. All right. जवाब दीजिए कपिल श्रीवास्तव जी, आप सपना ही देख रहे हैं, वही लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है कि ऐसा कोई नहीं है। क्लैरिफिकेशन कल दे दिया है डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने। मैं उनकी 2 बातों में से कौन सी बात सही मानूं? जो ट्वीट किया गया है उन पर कितना दबाव बनाया गया, या फिर वो बात मानूं कि जो उन्होंने सबके बीच में अपनी बात कही कि जो कार्यकर्ताओं की स्थिति दयनीय है वही उनकी भी स्थिति दयनीय है? 2 में से एक बता दीजिए, एक सही होगी, एक गलत होगी। और मैं तो बार बार कह रहा हूं कि भैया आप हमें बताओ, आपके लोगों में आपस में ये वक्तव्य आ रहे हैं। आप कहते हैं संविधान बदलने का नैरेटिव या आरक्षण का नैरेटिव हमने कसा ना, इंडिया गठबंधन ने बिल्कुल नहीं कसा। आपके 4 सांसदों ने कहा हमें 400 पार करा दो, हम जो है वो संविधान बदल देंगे, संविधान संशोधन कर देंगे, नहीं संविधान बदल देंगे। तो आपके लोग कह रहे हैं, आप हमारे मुंह की बात कहते हैं, आप मीडिया को दोषी ठहराते हैं। तो ये करना तो आपने किया है, कर्म आपके खराब है, बूथे आप दूसरे को है। Okay, let me bring in some of the other panelists as well. We have Anil Dubey, national spokesperson of the RLD. अनिल दुबे जी, क्या वाकई में एलाइज में इतना कुछ चल रहा है जिस तरह से बयान आ रहे हैं और समाजवादी पार्टी कहने की कोशिश कर रहा है कि पीडीए का कहीं ना कहीं इंसल्ट किया जा रहा है इसके द्वारा, क्या कहेंगे? इंडिया गठबंधन जो बातें कह रहा है उसमें कहीं कोई तथ्य नहीं है। एनडीए पूरी तरीके से एकजुट है और उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा के उपचुनाव होने हैं, तो एनडीए के सारे घटक दल मिलकर के उन 10 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। और मैं समझता हूं कि जो अभी कपिल जी भी कह रहे थे कि जो कि संविधान के आरक्षण के नाम पर इंडिया गठबंधन ने कोई प्रयास नहीं किया, तो इंडिया गठबंधन ने सिर्फ इन्हीं दोनों मुद्दों पर पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में जनता को बरगलाने का काम किया। और वही कारण था कि कुछ हिस्सों में इनको सफलता भी मिली, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब ये प्रवेश करते हैं तो वहां पर ये पूरी तरीके से फेल, इंडिया गठबंधन वहां पर कामयाब नहीं हो पाया। और हम लोगों ने उस समय भी इन समस्याओं को उठाया था कि इंडिया गठबंधन के लोग झूठा और मिथ्या प्रचार कर रहे हैं, और अगर उस समय इन चीजों को ध्यान दे दिया गया होता तो आज इनकी ये सीटें भी नहीं होती। आज लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, देश की जनता ये जान चुकी है कि संविधान और आरक्षण के नाम पर इंडिया गठबंधन के लोगों ने जो झूठा और मिथ्या प्रचार किया वो पूरी तरीके से झूठ निकला। देश में तीसरी बार श्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश की सरकार अच्छा काम कर रही है। और उस बात को देख करके उन मुद्दों पर चुनाव न होके झूठे और मिथ्या
Okay, let me bring in Kamruzaman Chaudhary on that. Kamruzaman Chaudhary, the narrative of the opposition completely failed in this election. That's a statement coming in from the RLD spokesperson. And also, of course, you heard what Sudhanshu Trivedi said earlier. He said, दो लड़के थे यूपी में, एक लड़का बड़का हो गया और दूसरे वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रहा है, or something to that effect, if I've got it right. How are you looking at this kind of politics playing out in UP? Kamruzaman Chaudhary. Now, Madhav, first and foremost, in politics, there are no permanent friends and no permanent enemies. That's a fact. But the moot question out here is that who is the inventor or the mother of vulture politics in India? It's no doubt anybody in this panel will accept the fact that the Bharatiya Janata Party always practiced poaching of opposition MLAs, breaking their governments, trying to form the governments by hook or by crook. There is no denying the fact. There are numerous examples out here. While coming back to so you will justify doing the same thing after criticizing the BJP for doing horse trading. It's okay for us to say and do, or even plan to do the same thing. Madhav, more is than it justified, 40%, sir? More than 40% of the BJP's MPs in the parliament in this election only were once upon a time congressmen or opposition politicians. So it's very rich on the part of the Bharatiya Janata Party to say something. मतलब ये कहने का मतलब यही है, देख कैसा लगता है, मतलब खेला कैसा बा, ये समझ में आएगा जब आने वाला दिन में, because in Uttar Pradesh already the voters have turned on the negative side from the Bharatiya Janata Party. That basically the introspection that the Bharatiya Janata Party must do is whether the bulldozer politics of Yogi ji is already bulldozing his own partymen also within the party. Even the Deputy Chief Minister has rebelled against him. There is nothing to hide on this. Even in the opposition ranks, Madhav, just 10 more seconds, on the opposition ranks, whenever some leader is having some headache or having a stomach ache, you will see the entire media, entire Bharatiya Janata Party's ecosystem will jump in, in ecstasy. That, lo, the Congress government is about to fall, Sachin Pilot is rebelling and all these things. But in this particular case of Uttar Pradesh, just wait for a few more days. Already the people have rejected the Bharatiya Janata Party, and now his own party. Fair enough. Let's put that question to Mr. Mishra. Mr. Kaushalkant Mishra, you know, at the end of the day, there are questions after the debacle of the Lok Sabha poll, and you have by-polls coming up. There's a lot of churning going on within Uttar Pradesh, and of course, a lot of factional fight also that is being reported in the media for the last few days. So at the end of the day, there are serious questions of what is going to happen in the UP unit of the BJP, and given the spate of meetings that we've seen from Delhi to Lucknow in the last 48 hours, it's a very pertinent question, is what the Congress is saying. Madhav, BJP is a cadre-based party. There will be no fractionation till date, and it will never happen. It will remain like a dream. But I am telling the reality that the Congress party has broken more than 100 times. This is the reality. And they are talking about the horse trading. They have suspended more than 90 state government by implementing the presidential rule in this country only. And for Akhilesh Yadav, इनके फादर ये कहते थे, स्वर्गीय मुलायम सिंह जी कहते थे कि जो बाप का ना हुआ वो देश का क्या होगा, प्रदेश का क्या होगा. ये तो इनकी हकीकत है और ये जनता ने देखा, और जनता ने मुलायम सिंह जी की बात को फॉलो किया, और इसी वजह से 2 बार उनको बाहर करके रखा हुआ सत्ता से. Would you like to respond to that, Kapil Srivastava? जी बिल्कुल. देखिए, सबसे बड़ी चीज तो ये है कि शायद वो मुलायम सिंह जी ने आडवाणी साहब के रिस्पेक्ट में ये बातें कही थी और वो मिश्रा जी देख नहीं पाए. उनको राष्ट्रपति के इलेक्शन तक भी नहीं आने दिया गया. उनके सीबीआई की चार्जशीट उसी समय खोल दी है. वो लानत कयानत ये किसी पर भेजे, लेकिन हकीकत क्या है, इन्होंने हार्स ट्रेडिंग की है. उसका कारण ये सत्ता में इन्होंने धन बल से, इन्होंने बाहुबल से, इन्होंने ईडी और सीबीआई से तोड़ने का काम. हमने तो ये कहा कि तुम भैया 100 लाओ, हम तुम्हें हेल्प कर देंगे, तुम सरकार बनाओ. हम सरकार में शामिल नहीं होंगे. हम तो कह रहे हैं हमारा विजन है पीडीए. हम तो खुल के कहते हैं कि हमारा विजन है पीडीए. अगर कोई पी और डी में से आएगा, कोई ए में से आएगा, बिल्कुल हम सहयोग और सहायता करेंगे ताकि उनका अपलिफ्टमेंट किया जा सके. और यह संवैधानिक मसला है, क्योंकि ये गैर संवैधानिक चीजें करते हैं. 69,000 शिक्षक के मामले में इन्होंने 4% पिछड़ों को आरक्षण दिया. इनके ही अपने पिछड़े वर्ग आयोग ने जब इस बात को सवालिया उठाया तो इन्होंने पिछड़े वर्ग आयोग को ही भंग कर दिया उत्तर प्रदेश में. आप बताओ,
जो आदमी इस तरीके मुंसफी कातिल हो जाए तो फिर आप कैसे उम्मीद करेंगे कि ये Okay. Almost out of time. Kaushal Kant Mishra. We have very limited time. Kaushal Kant Mishra, quick response. Yeah. कपीस जी, कांग्रेस के साथ मिलकर के आपने तो हॉर्स ट्रेडिंग का मेगा मॉल खोल दिया है, इसी वजह से एक्स पे लिख कर दे रहे हैं। अरे कम से कम कुछ तो शर्म कीजिए। संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी अगर इस तरह की बात करे तो क्या कहा जाएगा? हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करने की बात कर रहे हैं और एक तरफ हॉर्स ट्रेडिंग पे क्वेश्चन उठाते हैं, एक तरफ ऑपरेशन लोटस को क्रिटिसाइज करने की बात करते थे। अगर ऐसा था तो ये हॉर्स ट्रेडिंग की बात क्यों कर रहे हैं? 100 लाओ, सरकार बनाओ, सपने देखो और सो जाओ। That's a big question. While monsoon offers and may have been said in jest, at the end of the day, the moral high ground that the opposition has of attacking the government on such issues certainly does get weakened when such comments come in as well. We'll have to leave it there. Thanks so much for joining us, Dr. Kaushal Kant Mishra, Anil Dubey, Kapil Srivastava, Kamruzaman Chaudhary.